So one of the most frequent things that I hear with UPSC civil services exam preparation that it is very very tough and people feel कि I'm already behind. शुरू नहीं किया है but मैं already पीछे हो चुका हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं and ऐसे में they start doubting themselves, calling themselves an average aspirant. So in today's video I'm going to tell you 3 simple steps in which you can simply get ahead of 99% of the competition. सिंपल स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हैं, एक के बाद एक हम बात करेंगे. पहले स्टेप में हम 50% की जंप मारेंगे, दूसरे स्टेप में 90% की, एंड द थर्ड स्टेप, द हार्डेस्ट वन, will get you in that top 1%. So let's get started. Who am I and why should you care? My name is Abhijit Yadav. I've cleared UPSC Civil Services exam twice. I've gone to the IIT. I am Calcutta में मेरा हो गया था. I dropped out from there, went to FMS, and like in all of this, what I can say is I am not a genius. And nobody who's clearing UPSC civil services exam is. There are some things that they are, but genius is not one of them. So let's talk about it. आज की डेट में it is harder than ever to prepare for civil services exam, and yet at the same time it is easier than it ever was. It's easier than it ever was. क्यों? क्योंकि आपको इतने सारे YouTube channels है, इतनी सारी information है जो कि अगर आप 15 साल पहले चले जाते हो तो दिस इंफॉर्मेशन वॉज नॉट सो फ्रीली अवेलेबल. अ लॉट ऑफ यू आर प्रिविलेज्ड इन दैट मैनर बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बट दैट प्रिविलेज कम्स विद कॉस्ट्स, राइट? इट इज हार्डर देन एवर बिकॉज देयर इज मोर नॉइज देन एवर बिफोर, एंड उस नॉइज में से सिग्नल को पकड़ना मुश्किल हो जाता है, विच इज वाई इवन दो इट्स वेरी इजी, इट्स स्टिल वेरी वेरी हार्ड. बट स्टिल 1% जो टॉप के लोग हैं, द टॉप 1%, they are in on a secret, a very very simple idea which we'll talk about in a bit, but all of them know and understand this very very deeply. सबसे पहली चीज, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है? दैट पीपल पुट इन हाफ हार्टेड एफर्ट्स. हाफ हार्टेड एफर्ट कैसे? मैं दिन में 3 घंटा पढ़ाई कर रहा हूं एंड देन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बहुत कुछ हो जाएगा. आई एम थिंकिंग कि भाई आई विल वेक अप, आई विल अटेंड कोचिंग, बेयर मिनिमम सा मैं कुछ करके 100 बहाने ढूंढ के, एंड देन सडनली वन डे आई वेक अप एंड से कि भाई यार अपना प्रीलिम्स क्यों नहीं क्लियर हो रहा? क्यों? क्योंकि योर टाइम इज गेटिंग वेस्टेड, you're procrastinating, you're not putting in the effort that is required to be put in. मतलब इतना यहाँ पे होता है कि भाई 80% of the people are just not preparing, and वो नवंबर में जाके जागते हैं, and once they wake up in November they think कि okay 6-7 months of preparation more than enough. And then the biggest question that they're asking is, if I start preparing from now, can I clear it? आज से शुरू करो ना, आज से क्यों नहीं कर रहे? अगर तैयारी करने का इतना ही शौक था तो फिर like what's stopping you? So always keep this in mind that not just that procrastination is a problem, we are doomed digitally. Like you're watching this on a social media channel, and I'm sure that while you are watching this, you also have something that is going on the side. आप साइड में कुछ और भी स्क्रॉल कर रहे हो, नीचे कमेंट्स को स्क्रॉल कर रहे हो, या साइड में अगला वीडियो देख रहे हो, बिकॉज that is what we have become. Our attention spans have degraded to the extent that it is very very difficult for us to focus on one thing at a time. And if you are serious about civil services exam preparation, that is what you will have to do. You will have to study multiple subjects one at a time, एक एक करके, धीरे धीरे, over time. And that is where the problem again comes up कि procrastinate करते हैं, फिर डिजिटल डिस्ट्रैक्शन हो जाता है. 2-3 मिनट का टाइम लेने के लिए गए थे एंड इवेंचुअली वो 2 घंटे निकल जाता है, एंड देन एंड ऑफ द डे आई एम लाइक कि भाई मेरा दिन कहाँ गया? मुझे तो पढ़ाई करनी थी बट आई हैव नॉट स्टडीड. सो इफ यू आर वन ऑफ दीज पीपल हु इज लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स इंस्टेड ऑफ वर्किंग, तो आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ दैट यू आर नॉट गोइंग टू मेक इट. बट द गुड थिंग इज द स्टेप्स इन टुडेज वीडियो विल कवर हाउ यू कैन get across the line. Now the biggest thing over here is doing. कि भाई while the majority of candidates are watching, माने कि they are watching some random videos कि भाई daily news analysis का 2 घंटे का एक चैनल पे देखा, फिर दूसरे चैनल पे देखा, जाके daily news analysis 6 घंटा देख लिया. You do. Doing is what will help you. Doing is what will differentiate you, and that is what needs to be your advantage. Opportunity gap है एक यहाँ पे. Opportunity gap क्या? While others are watching these 2-hour long videos, PYQ analysis video, daily, live MCQ solving videos, daily news analysis videos, why don't you actually go and do that? Why don't actually go and analyze and solve those PYQs? Attempt full length mock tests.
मेंटल हैवी लिफ्टिंग करनी पड़ेगी आपको। जब तक खुद से अपना दिमाग नहीं दौड़ाओगे, कोशिश नहीं करोगे, तो अगर आप सोच रहे हो पकी पकाई खिचड़ी खा के आप सिविल सर्विसेज निकाल लोगे, नहीं होगा। दिस गैप एग्जिस्ट्स। इफ यू कैन मूव फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, you will have started on the journey to improvement and to success. Now, इसमें टॉप 1% में आने के लिए हमें 3 सिंपल स्टेप्स लेने हैं। द फर्स्ट स्टेप, लेवल 1, पावर ऑफ इंटेंशनल चॉइसेस। नाउ पावर ऑफ इंटेंशनल चॉइसेस इज अ सिंपल आइडिया कि यहां पे अगर आप चूज करते हो टू बी बेटर, टू बी दैट पर्सन हु कैन क्लियर सिविल सर्विसेज एग्जाम, राइट देन एंड देयर you will have defeated 50% of the market. 14 लाख लोग सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करते हैं। Just by level 1, you will be ahead of 50% of the market. Level 2, the power of discomfort. Here, I'm actively, trying to improve. Actively, मैं अपनी गलतियां खोज रहा हूं। I will be in the top 90%. These are your serious candidates. एंड ये सीरियस कैंडिडेट्स जो हैं, यही वो लोग होते हैं जो मेंस लिख रहे हैं, यही वो लोग होते हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं 2-3 बार में, मतलब अटेम्प्ट्स इनके चक्कर लगे हुए हैं, यहाँ पे हैं वो लोग। टॉप 1%, दीज आर द पीपल हु आर गेटिंग अ रैंक, राइट, वन वे और अनदर। सिविल सर्विसेज नहीं तो फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट नहीं तो कहीं और पे, ये लोग साल दर साल वो रैंक निकाल रहे हैं जो टॉप 1% में है। एंड दे आर हार्नेसिंग द पावर ऑफ पेन, माने कि चोट लग रही है, बट दैट्स नॉट स्टॉपिंग मी फ्रॉम इम्प्रूविंग। And that is the mindset that you have to have if you want to get in the top 1%. So, intentional choices क्या हैं? Stage 1, very simple, absolutely. And tell me this, मन में खोजो अपने, आप में से कितने लोग हैं जिसको सिलेबस पूरा का पूरा याद है? पेपर में पूछना है क्या वाले हैं ये ही नहीं पता है, तो फिर हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग कि मैं तैयारी कर रहा हूं? तो नंबर 1, रट लो सिलेबस, मेमोराइज इट, हैव इट राइट इन फ्रंट ऑफ यू ऑल द डैम टाइम। अंडरस्टैंड द डिफरेंट फेजेस ऑफ द एग्जाम। एमसीक्यू होता है तो एमसीक्यू करने के तरीके क्या होते हैं, टेस्ट करके देखो, अपने आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, कोशिश करो, रगड़ा खाओ, गिरोगे उठोगे सीखोगे। बट कोशिश ही नहीं करोगे, सिर्फ वीडियो देखते रह जाओगे तो वहीं रह जाओगे। देन नो द एग्जाम एंड चूज द राइट ऑप्शनल सब्जेक्ट। अ लॉट ऑफ यू, मतलब ये मेंटर कॉल्स में भी हमारे साथ होता है कि मतलब इतने सारे मेंटर कॉल्स पे स्टूडेंट्स आते हैं, दे आर लाइक आई हैव नॉट चोजन माय ऑप्शनल सब्जेक्ट येट। कब चूज करोगे फिर? नाउ इज द टाइम, क्योंकि अगर आप 2026 के लिए सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हो, यू हैव टू स्टार्ट नाउ, यू हैव टू चूज दैट ऑप्शनल सब्जेक्ट, बिकॉज 3-4 महीना आपको सिर्फ ऑप्शनल करने में लगेगा। नवंबर में जाके ऑप्शनल करोगे तो फिर 27 में जाओगे, फिर यू गेट द पॉइंट। सो दिस इज द वेरी सिंपल आइडिया ओवर हियर that 50% of the aspirants don't even know the syllabus. उनको पता ही नहीं है कि भाई मेंस में क्या आता है, प्रीलिम्स में क्या आता है। वो सोच रहे हैं कोई वीडियो मिल जाएगी तो देख लेंगे। क्यों? क्योंकि खुद से देखने में बहुत मेहनत लगती है। 50% of the aspirants don't know how many optional subjects there are. बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको 3 ऑप्शनल 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट पता ही नहीं है और क्या क्या ऑप्शंस हैं। So therefore, what are they choosing? What everybody else is choosing without a single thought to कि क्या मैं इस सब्जेक्ट में अच्छा कर सकता हूं। ये 3 बेसिक चीजें अगर आपने कर ली तो वेरी सिंपली पुट यू विल बी डूइंग वेरी वेल। नाउ फाइनल चेक पॉइंट नहीं है ये, दिस इज एक्चुअली योर फर्स्ट चेक पॉइंट। एंड फर्स्ट चेक पॉइंट में चूज योर बुक्स वाइजली, चूज योर सोर्सेज। इस पे हमने पूरी वीडियोस बना रखी हैं जो कि आप देख सकते हो। बेसिक बेयर मिनिमम रिसोर्सेज क्या आपको करनी है, जिनको मल्टीपल बार आपको करना है, ये चीजें देखो। डू नॉट चेंज योर बुक्स, डू नॉट इज द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट, चेंज योर बुक्स। जो भी कर रहे हो यही किताबें अगले 2 साल तक आप रगड़ा मारोगे। पॉलिटी लक्ष्मीकांत से कर रहे हो तो सिर्फ लक्ष्मीकांत से करो, हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से कर रहे हो तो सिर्फ स्पेक्ट्रम से करो। मत सोचो, मत दिमाग लगाओ और क्या है कहाँ है। एक किताब को 10 बार जब तक नहीं करोगे तब तक पता भी नहीं चलेगा कि भाई यहाँ से कमी क्या थी या यहाँ से ज्यादा क्या था। चूज 1 मंथली मैगजीन, anyone will work. विजन लो, फोरम लो, whatever it is that you want to do, do it. Don't be like कि अच्छा इस महीने मैं उधर से कर रहा हूँ, अगले महीने मैं उधर से कर रहा हूँ। जंप अराउंड मत करो, commit to whatever it is that you want to do. If you can do these things, keep in mind that 50% of candidates are stuck right here. ये 3 बेसिक चीजें अगर आप यहाँ कर सकते हो, सिलेबस को जान लो, अपना बुक लिस्ट फाइनलाइज कर लो, ऑप्शनल चुन लो, बेसिक चीजें अगर आपने ये कर ली तो congratulations, you have cleared stage 1 and you are ahead of 50% of the competition. So 50% aspirants से आप आगे हो, but 50% is a very big number. आप 14 लाख को कम करके
7 लाख पे आ गए हो। स्टिल दिस इज अ ह्यूज नंबर, सो वी मस्ट मूव ऑन। नेक्स्ट 40% में क्या करना है? अब एक बार जब हमने अपनी किताबें चूज कर ली, जब हमने अपना बेसिक ये सेट कर लिया कि भाई हाँ मैं तैयारी करना चाहता हूं, मैंने सिलेबस पढ़ लिया, कमिटमेंट कर ली, इंटेंशनल चॉइस मैंने ले ली, तो नाउ इट्स अबाउट अ प्लान एंड कमिटिंग टू इट। एग्जाम को समझना है, सिर्फ पढ़नी नहीं है ये किताबें, एग्जाम इनसे क्या पूछता है आपको समझना है। ये वीडियो बार बार देखते रहोगे कि भाई कोई मुझे बता दे, समझा दे कि भाई इसमें से कितना कुछ बेसिक आएगा और बाकी सब मैं छोड़ दूं, नहीं होगा। You have to spend time with the subject, you have to understand the subject, because only then will you get a sense of the nuance. Intuition जो चीज होती है हमारी, वो एफर्ट से बनती है। तो सिलेबस, बुक्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर योर अल्टीमेट सोर्सेज फॉर द एग्जाम, एंड इन तीनों चीजों को आपको बार बार अपने सामने लाते रहना है। एक पॉइंट के बाद यूपीएससी प्रिपरेशन इज एब्सोल्युटली बोरिंग, क्योंकि यही सिलेबस को मैंने रट लिया है, बुक्स को मैंने 10 टाइम्स करना है, पीवाईक्यूज को मैं बार बार सॉल्व करे जा रहा हूं, तो इट जस्ट गेट्स एब्सोल्युटली बोरिंग। ओनली कमिटमेंट विल सेव यू। कमिटमेंट कैसा? कि भाई मुझे करना है, रिमाइंडिंग योर सेल्फ ऑफ दैट कि भाई आई वॉन्ट टू डू दिस बिकॉज नोबडी एल्स कैन पुश यू टू क्लियर दिस एग्जाम। दिस इज नॉट वन ऑफ दोज एग्जाम्स कि पीछे से कोई धक्का मार के बोलेगा कर ले कर ले कर ले कर ले और हो जाएगा, नहीं होता है। खुद से आपको जोश नहीं आ रहा है तो फिर जब वो मोमेंट आएगा जब मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का, और क्योंकि आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हो तो घर पे बैठे हो कमरा बंद करके, लोगों को क्या लग रहा है पढ़ाई कर रहा है, पहले 2 साल निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। कमिट करना पड़ेगा और वो कमिटमेंट अंदर से आना चाहिए, क्योंकि अंदर से आएगा तब खुद से पुश आएगा, खुद से मेहनत करोगे। Which brings us to the cycle. सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रिपरेशन एक सिंपल सी साइकिल है। सिलेबस पढ़ो, टॉपिक पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ो, यहाँ से जो प्रॉब्लम्स आई उसके बेसिस पे टॉपिक को दोबारा पढ़ो, दोबारा मॉक टेस्ट सॉल्व करो, रिपीट द होल थिंग एज मेनी टाइम्स एज रिक्वायर्ड। इंट्यूशन एक सब्जेक्ट में बनाना है कि भाई हिस्ट्री में किस तरीके के सवाल आते हैं, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। वीडियोस देख के आपको ये चीज़ समझ आ सकती है कि हाँ देयर आर सम सेक्शंस व्हिच आर मोर इंपॉर्टेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट, बट आपको ये सवाल पूछना है कि भाई क्यों उसने बोला ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है एंड क्या मैं उसकी बात से अग्री करता हूँ कि नहीं। डोंट ट्रस्ट एनीबडी, बिल्ड योर ओन इंट्यूशन, क्योंकि ये एग्जाम किसी दूसरे की पकाई हुई खिचड़ी खाने से नहीं होता। You have to build your intuition and that will only happen with time. So please keep that in mind. ये intuition घिस घिस के ही बनेगा, सब्जेक्ट में घुसोगे नहीं, घिसोगे नहीं अपने आप को इस सब्जेक्ट के साथ, हर सब्जेक्ट के साथ, तो समझ नहीं आएगा कि भाई पूछ क्या रहे हैं, कैसे रहे हैं, और हर बार यही लगता रहेगा कि कुछ भी पूछ लेते हैं। कुछ भी नहीं पूछते हैं, बहुत स्पेसिफिक चीजें पूछते हैं, बट समझने वाले की जरूरत है। तो the most important milestone at this stage is for you to practice. जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, we want to apply our knowledge. We want to learn how to use the things that we have read about. सिर्फ रट के replicate नहीं करनी है, क्योंकि UPSC is beyond that. आप पढ़ के जाओगे कि भाई जीडीपी क्या होता है, वो जाके वहां पूछ लेंगे कि भैया ये 4 नंबर हैं, इतना नंबर से ये था वो था वो था, फिस्कल डेफिसिट बता दो। अगर क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट, नहीं कर पाओगे, तो देयरफॉर यू हैव टू बी एबल टू अप्लाई योर नॉलेज। एंड अप्लाई योर नॉलेज में एक बहुत सिंपल सी चीज है, इनर्शिया आता है जो हमें टेस्ट देने में, उसको हमें तोड़ना है। टेस्टिंग हेल्प्स अस अंडरस्टैंड। टेस्टिंग इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू अंडरस्टैंड अ सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे अगर समझ नहीं आया तो, और ये गलती बहुत जल्दी पकड़ के जितना काम करोगे उस पर उतना अच्छा है। सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। सिर्फ ये पूछते रहने से कि भाई कितने मॉक्स सॉल्व करने हैं, कब मैं मॉक्स सॉल्व करना शुरू करूं, से कोई मतलब नहीं है। जितने मॉक्स सॉल्व करने हैं करो, आज से शुरू हो जाओ। क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा? खराब नंबर आएंगे, गलती करोगे, गलती करके सीखोगे। सीखने वाले बनो। It doesn't matter how many mocks you give. People have cleared this exam with 5 mocks. People have given 100 mocks and not cleared this exam. Mocks कितने देने हैं से कोई फर्क नहीं पड़ता। गलती से सीखने वाले बनो। That is what matters in the end. And ये अगर आपने कर लिया तो congratulations. You are now in the top 10%. You have already defeated 90% of candidates if
you are able to consistently show up, if you are able to practice, if you are able to break that inertia of mock test कि नंबर कितने आएंगे, क्यों आएंगे, ये सवाल जो है कितने मॉक टेस्ट दूं इज द मोस्ट यूजलेस क्वेश्चन. क्यों? क्योंकि ये उस इंसान का क्वेश्चन है जो घबरा रहा है कि मतलब मैं ज़्यादा काम ना कर दूं, ज़्यादा काम करना पड़ेगा. अगर ज़्यादा काम करने से डर रहे हो तो फिर मतलब क्या कर रहे हो यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी चीज़ पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा. एंड दैट विल बी इंडिविजुअल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. Somebody might have to take, a lot of time into understanding CSAT. Somebody might have to spend a lot of time solving MCQs. Somebody might have to spend a lot of time writing answers. Now that you are in the top 10%, problems will be individual and unique to you. आपकी प्रॉब्लम्स को आपको इंडिविजुअली सॉल्व करना है. हाईज भी आएंगे, लोज भी आएंगे, जीतोगे भी, कभी प्रीलिम्स हो जाएगा, कभी इंटरव्यू तक जाओगे, कभी कभार झटके खाओगे. हर चीज़ को समतलता से, इक्वानिमिटी से हमें सहना है, झेलना है, उसके थ्रू जाना है. जब खुशी का माहौल है तो ऐसे बह नहीं जाना है, गम का माहौल है तो उसमें डूब नहीं जाना है. मध्य मार्ग, बुद्ध ने यही सिखाया था. यहाँ पे वो चीज़ काम आती है. क्यों? क्योंकि मध्य मार्ग में अगर रहोगे तो आपकी जो कॉम्पिटेंसी है और जो आपके आसपास वालों लोगों की कॉम्पिटेंसी है उससे आप सीखोगे. टॉप 1% में जाने के लिए यू हैव टू फेस पेन, यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ सेटबैक्स. गलती होती है, प्रैक्टिस से सीखते हैं. यहाँ पे रगड़ा लगेगा, यहाँ पे प्रॉपर आपको पता चलेगा कि भैया तुम इस चीज़ में बेकार हो. उस जगह पे रुकना नहीं है, उस जगह पे आगे पूछना है कि बेकार हैं तो बढ़िया कैसे बने. आगे बढ़ने की क्षमता रखो. दैट हैविंग दैट ग्रिट, पेशेंस एंड रेजिलियंस इज व्हाट डिफरेंशिएट्स द टॉप 1% फ्रॉम द 10%. ये जो 10% लोग हैं, ये जो 1 से 1.5 लाख लोग हैं, दीज आर योर कॉम्पिटिशन. दिस इज द रियल कॉम्पिटिशन दैट एग्जिस्ट इन द सिविल सर्विसेज एग्जाम. द टॉप 1%, लाइक आई सेड, आर द पीपल हु आर गेटिंग द रैंक्स. बट 1 से 1.5 लाख लोग हैं जो कि पोटेंशियल रखते हैं कि इस साल अगर 6 महीने 8 महीने उन्होंने मेहनत कर ली तो वो निकाल सकते हैं. बट यहाँ तक आने के लिए काफ़ी कुछ करना है, which we've already talked about. Now, coming to pain. Pain यहाँ पे जो चीज़ है, that is personal and individual to you. अभी तक क्या था कि भाई टेस्ट देते चलो. अब क्या है, मेरी गलतियाँ कहाँ हैं. Your limitations, you need to find them and overcome them. अगर आंसर राइटिंग मेरी खराब है तो मुझे पूछना है क्या खराब है इसमें, बताओ मुझे ताकि मैं इंप्रूव करूं. किसी ने बोला कि भाई तुमसे ऐसे नहीं लिखा जा रहा, क्या दिक्कत है, बताओ मुझे, मैं इंप्रूव करूं. यहाँ पे नेचुरली यू नीड फीडबैक. अ लॉट ऑफ द टाइम्स पीपल फील कि भाई यहाँ पे टॉप 1% में आने के लिए बिल्कुल भी फीडबैक की जरूरत नहीं है. नहीं, टॉप 1% में आने के लिए कभी कभार हैविंग अ गुड कोच, अ गुड मेंटोर टू गाइड यू एंड लुक एट व्हाट यू आर डूइंग एंड हेल्प यू आउट थ्रू दैट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल. एंड UPSC Essential is the course that we have for that. If you're interested, you can visit courses.upscprep.com और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा. But seeking and acting on feedback is what differentiates the top 1% from the rest. You need to actively seek out कि मेरी प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं, मैं इस आंसर को और कैसे इंप्रूव करूँ, आधा नंबर मैं और यहाँ कैसे ले लूँ. Be willing to start over. क्योंकि बहुत बार क्या होता है, by this point we have already done some things, we have already made some progress, but एक मेंटोर आता है, बोलता है कि भाई जो अब तक तुमने काम किया है वो गलत है. सुनने की क्षमता रखो, सीधा रिजेक्ट नहीं करो, सुनो, बट विद अ क्रिटिकल माइंड. फोकस ऑन प्रैक्टिस ओवर नॉलेज एट दिस पॉइंट. नॉलेज, अगर आप यहाँ पे टॉप 10% में आ चुके हो तो नॉलेज आपने गेन कर ली है. अब मुझे उस नॉलेज को यूज करना है. Because if I can't use my knowledge, what use is that knowledge in the end? बहुत से लोगों को ये दिक्कत रहती है कि भाई हम दुनिया भर की PDF कलेक्ट कर लेते हैं, हर टाइप के नोट्स ले लेते हैं, यूज नहीं कर पाओगे. दिस इज वेयर दैट फर्स्ट कमांडमेंट कि भाई बेसिक रिसोर्सेज 10 बारी उन्हीं को करेंगे. यहाँ पे उन्हीं चीज़ों से अब हम प्रैक्टिस करेंगे. प्रैक्टिस में जो गलतियां निकलती हैं, छोटे छोटे नुक्स निकलते हैं, उन पे हमें काम करना है. यू माइट नीड मल्टीपल अटेम्प्ट्स. नाउ दिस इज अ पेनफुल ट्रूथ बट अ ट्रूथ नॉनदलेस कि इफ यू वांट इट बैड इनफ, अगर
तरीके से आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, रास्ते में काम चोरी नहीं कर रहे हो, यू विल सक्सीड। सिविल सर्विसेज नहीं तो फॉरेस्ट सर्विसेज में, स्टेट सर्विसेज में कहीं ना कहीं आपका निकल जाएगा, ये मैं बोल सकता हूं, अगर आप ढंग से तैयारी कर रहे हो तो। बट दैट्स द प्रॉब्लम कि भाई लोग 3 महीना 4 महीना करते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। टॉप 1% वाले जो लोग हैं, दोज आर द पीपल दैट हैव बीन डूइंग इट कंसिस्टेंटली एटलीस्ट फॉर 1, 2, 3 ईयर्स। मेहनत पे लगे हुए हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं। तो इन लोगों के साथ जब आपको compete करना है तो you can't take it slack. Which brings us to the most painful process. Analyze your scores. Document what went wrong. अपनी गलतियां लिखो। ये कितनी बार मैं लोगों को बोलता हूं जिन्होंने मेंस दिया है, जिन्होंने प्रीलिम्स दिया है, and this is something that I will say to you. If you have given prelims before, if इस साल 2025 में आपने प्रीलिम्स दिया था तो आपकी कुछ गलतियां थी, आपको पता है वो क्या गलतियां थी, बट आपने कहीं लिखी हैं? नहीं लिखी हैं। क्यों? क्योंकि आप मान के चल रहे हो कि अगले साल तक जब आएंगे मुझे सब कुछ याद रहेगा। नहीं रहेगा, और फिर से वही सेम गलतियां तुम रिपीट करोगे। लिखो अपनी गलतियों को, प्रोसेस बनाओ अपनी तैयारी का। देयर शुड बी अ प्रोसेस कि अगर मैं कोई गलती करता हूं तो मैं दोबारा वो गलती रिपीट ना करूं। क्यों? क्योंकि मेरी प्रोसेस ऐसी है, मैंने उस गलती को नोट डाउन कर लिया है। I will make my level best effort to not do that again. Work on identified gaps. गलती पहचान ली तो गलती नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे करके ये gaps खत्म होंगे through rigorous practice. That is how you will improve. आंसर कॉपीज टॉपर की देखोगे, सब चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी, बट कुछ चीज़ें आप इंप्लीमेंट कर पाओगे। उनको नोट डाउन करो, तरीके से कहीं एक जगह रखो, नोट्स बनाओ, अपने नोट्स बनाओगे, उनको रिवाइज करो। ये सारी चीज़ें इन प्रोसेस आपको करनी पड़ेंगी। प्लीज कीप इन माइंड दैट एवरी ईयर सिविल सर्विसेज एग्जाम के टॉपर्स आपको बोलते हैं कि भाई नोट्स बनाओ अपने, एंड येट एवरी ईयर 90% ऑफ द पीपल व्हाट आर दे डूइंग कि भाई बाजार में मुझे बने बनाए नोट्स कहीं से मिल जाए तो वो मैं पढ़ लूं और मेरा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? टॉप 1% में ये जो लोग हैं ये ऐसे ही झक मार रहे हैं। इन्होंने चुन चुन के अपने नोट्स बनाए हैं, इतना उसको कंडेंस कर दिया है कि भाई इस नोट्स में से कहीं से भी कुछ भी थोड़ा सा भी अटकता है, दे विल राइट मच बेटर देन यू। व्हाई? बिकॉज दे पुट इन दैट एफर्ट। पेपर में जाके शाइन नहीं करोगे, पेपर में जाने से पहले जो मेहनत करी है उसकी वजह से पेपर में शाइन करोगे। सो प्लीज कीप दैट इन माइंड, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट you have to take care of exercise and meditation. This is for your physical health, this is for your mental health. Both of those things are important. 2 साल की तैयारी अगर आप कर रहे हो, even if you are clearing it in your first attempt, this is, I've said it multiple times, let's say आज तुम तैयारी शुरू करते हो जुलाई of 2025, May of 2026 में prelims, final result April of 2027. 2 साल की तैयारी है even if you are clearing in your first attempt. If you're thinking कि उसमें मतलब मेरी जो आदतें हैं वो बिल्कुल नहीं बिगड़ेंगी, या कुछ जो मेरा वेट है वो नहीं बढ़ेगा, कुछ भी ना मैं करूँ तो भी, तो ऐसा नहीं है। यू हैव टू बी कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि भाई आप एक्सरसाइज फॉर योर फिजिकल हेल्थ एंड मेडिटेशन फॉर योर मेंटल हेल्थ साथ में करते हुए चलना है। एंड इफ यू कैन डू दैट, इन सब चीज़ों को अगर साथ लेके आप चल रहे हो तो देन कंग्रेचुलेशंस, you will be in that top 1%. You will have defeated 99% of aspirants because कहीं ना कहीं they will make mistakes, कहीं ना कहीं वो छूट जाएंगे, they will slip, and that is where you will find that edge because of that relentless effort and grit कि भाई मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ और मैं पीछे नहीं हटने वाला। Top 1%, these are as I said your rankers. यहाँ तक आप आ गए हो तो प्लीज़ कीप इन माइंड कि 13-14 लाख जो हमारे लोग हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, टॉप 10% आर योर रियल कॉम्पिटिशन, 90% आर नॉइज। टॉप 10% कॉम्पिटिशन है, बट रैंक कहाँ है? 1% में। तो नंबर्स को देख के घबराना छोड़ो, बेसिक सी एक चीज़ है, प्रोसेस पे ध्यान देना शुरू करो। आपकी पढ़ाई का प्रोसेस क्या है, आपके दिमाग में इतनी सारी इंफॉर्मेशन जा रही है, उसको रिपीट करने का आपका प्रोसेस क्या है? रिवीजन करो, रिवीजन करने की कोशिश तो करो। लोग पूछते हैं रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या है? तुमने वर्स्ट तरीका आजमा के देखा? तुमने कोई तरीका आजमा के देखा? कुछ करने की कोशिश करो। बहुत चीज़ें भूलोगे, बट अगर एफर्ट डालोगे तो कहीं ना कहीं आउटकम मिलेगा। फाइनली यू हैव 2 चॉइसेस। अगर आप सिविल सर्विसेज के इस
जंगल में कूदे हो तो दर्द होगा, दैट इज नॉट अ चॉइस। आइदर इट विल बी अ कंट्रोल्ड पेन, माने कि मैं गलतियां कर रहा हूं, गलतियां करते हो नंबर कम आते हैं, बुरा लगता है। ऐसा कोई नहीं है हम में से हु हैज कम आउट ऑफ द इंडियन स्कूलिंग सिस्टम हु कैन से कि भाई मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता जब मेरे टेस्ट में नंबर नहीं आते। दिट्स अ रेयर फ्यू इंडिविजुअल, but this is controlled pain, this is through controlled failure. Either you take the controlled pain or you will face the uncontrolled pain of exam failure, regret, and हर साल उठ के जो वही कि भाई 2 साल से तैयारी कर रहे हैं बट कुछ नहीं हुआ है, शुरू से शुरुआत करते हैं, वो जो रिग्रेट होती है ना, आई कैन टेल यू पर्सनल एक्सपीरियंस, पहले 2 अटेम्प्ट मेरे भी ऐसे ही गए थे, बट आफ्टर दैट आई टुक अ कॉल कि भाई नहीं, करना है तो करना है, एंड दैट्स व्हाट इट इज। पेन इज गोइंग टू कम टू यू वन वे और अनदर। अगर आप सिविल सर्विसेज की इस जर्नी में घुसे हो, दर्द कहीं ना कहीं तो होगा, बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट यू गेट टू चूज। दैट्स ऑल दैट आई वांटेड टू से इन टुडेज वीडियो। ऑल द बेस्ट।